Hello, good evening students. Welcome to the session. In this session we are going to discuss CBSE 2020 final exam question that is asked in the examination, and the question was in 1 mark multiple choice question. So we will discuss in the detail. First of all, welcome to the video, and if you feel this video is useful to you, then after watching this video you can like and share this channel with your friends. So this is the question that is asked in the final examination, and this type of question is asked in the final examination, and that was a multiple choice question in 1 mark, as CBSE started this time multiple choice questions as well as filling the blanks in the first 20 marks questions. So multiple choice question was asked, but such type of question we cannot expect because we have to find the numerical value as well as the direction of magnetic field in that particular question. But CBSE asked, so that's why I am going to discuss 5 questions here, and we will see the complete analysis about every question, in which type of question, how the question can be changed. So let's see the first question. So first question on screen is now a current flows in a conductor from east to west. So students, here I have taken the directions. This is east one. So opposite to the east is west, and the upper one is north, and this one is south. So I hope you are aware about the 4 directions: east, west, north, south. If you are not aware, then you can note down the directions. Now what he is saying, a current flows in a conductor, so from east to west, that means current is flowing in this direction, east to west direction. So current is flowing in which direction? East to west. I hope current is visible. Direction of current is visible. This is current I. Now students, the direction of the magnetic field at a point above the conductor. So he is asking about the point which is just above. तो that means ये जो कंडक्टर है, this is the conductor, इसके बिल्कुल ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ पे, and we have to find the direction of magnetic field at that particular point. So I hope डायग्राम थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ कि पॉइंट कहाँ पे है. पॉइंट इज लाइंग जस्ट अब दिस कंडक्टर. ये जो कंडक्टर है ईस्ट से वेस्ट वाला जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके बिल्कुल ऊपर है. सो हाउ कैन आई डू? लेट्स सी. सो दिस वाज द करंट दैट इज फ्लोइंग, एंड मेरा पॉइंट कहाँ पे है जहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, दैट इज जस्ट अबव दिस कंडक्टर. सो मैंने यहाँ पे ले लिया. चलो ये बच्चे 3D डायग्राम है. सो दिस पॉइंट इज जस्ट लाइंग अबव दिस बिट. तो ये यहाँ पे है, देखो इसके ऊपर बिल्कुल. तो दिस इज आर वेक्टर. ये मेरा क्या हो गया? दिस इज माई आर वेक्टर. ठीक है. सो दिस इज माई आर वेक्टर, एंड current is flowing in this direction. So this is my ideal vector. This vector is my ideal vector. So now what I have to do, using Boyd-Sabat law, I have to cross this ideal cross R. I have to cross these two vectors, ideal cross R vector. So if I will close my fingers from ideal to R, from ideal vector towards R vector. So अगर मैं ideal vector से R vector की तरफ अपनी fingers close करूँगा, then my thumb will be inward. मेरा जो thumb होगा that will be inward. अगर आप close करके देखोगे तो देखो ideal से आपने क्या करना है, fingers को close करना है in R vector की direction में, राइट हैंड की. यू हैव टू क्लोज योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम आइडियल वेक्टर टू आर वेक्टर. देन बच्चे आपके पास डायरेक्शन जो आएगी दैट विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ. तो आपकी जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की दैट विल बी
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, दैट विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ। तो एक बार खुद चेक करोगे, प्रैक्टिकली करके देखना। डायरेक्शंस अज्यूम, यू कैन अज्यूम द डायरेक्शंस। एक बार डायरेक्शंस अज्यूम करना, देन आफ्टर दैट करंट को अज्यूम करना, एंड देन पॉइंट अज्यूम करना। पॉइंट इज जस्ट अबव द कंडक्टर। तो ईस्ट से जो वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है, दैट पॉइंट इज जस्ट अबव द कंडक्टर। सो व्हेन यू विल क्रॉस आइडियल, दिस इज आइडियल, आइडियल को आर के साथ क्रॉस करोगे, आइडियल क्रॉस आर, यू हैव टू क्लोज योर फिंगर्स फ्रॉम आइडियल डायरेक्शन टूवर्ड्स आर। आइडियल की डायरेक्शन में रखोगे फिंगर्स को, आर की डायरेक्शन में क्लोज करोगे, देन योर थंब विल बी इनवर्ड, एंड इनवर्ड डायरेक्शन देखो कौन सी जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन इज नॉर्थ। तो ये तो बच्चे क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। बट समटाइम्स क्या था, सीबीएसई ने साथ में क्या किया, दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स। उन्होंने पैरामीटर्स की वैल्यू दे दी। लाइक सपोज दे हैव गिवन द करंट 5 एम्पियर, उन्होंने करंट की वैल्यू दे दी आपको 5 एम्पियर, एंड दिस पॉइंट इज लाइंग एट 10 सेंटीमीटर अबव द कंडक्टर। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, और द पॉइंट इज लाइंग 10 सेंटीमीटर अबव द कंडक्टर एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज 5 एम्पियर। तो अब इसमें क्या होगा, इन दिस केस वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, जिसमें दोनों एंगल 90-90 हो जाते हैं। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई 2πr, दैट इज द फॉर्मूला, और दैट यू कैन राइट हेयर 2πa। आप 2πa भी लिख सकते हो, 2πr भी लिख सकते हो। आर से रेडियस को बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी, सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग 2πa। सो आई होप इट इज़ क्लियर। B is equal to mu naught into I by 2πa. This is the formula that will be used for this question. इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला बच्चे यूज़ होना था। बेसिकली CBSE ने क्या किया, CBSE आस्क्ड द क्वेश्चन एंड दे हैव आस्क्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उन्होंने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पूछ ली। दैट मीन्स स्टूडेंट को वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गई, बिकॉज दे हैव गिवन 2 ऑप्शंस विद सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। उन्होंने डायरेक्शन 2 क्वेश्चन ऑप्शंस की अलग अलग कर दी, बट मैग्नीट्यूड सेम कर दिया। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। सो इफ आई फर्दर सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज़ 4π इंटू 10⁻⁻⁷। तो बच्चे इस वैल्यू को आपको याद करना होगा। 4π इंटू 10⁻⁻⁷ इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। वेट, 4π into 10⁻⁻⁷ is the value of this mu naught, and then the value of current is 5 ampere. Then the value of current is 5, and in the denominator there is 2π into 10, but we have to convert this 10 into, this is in centimeter, so we have to convert it into meters also. So 10 into 10⁻²। so then बच्चे आपका जो आंसर आएगा, then that answer will be, now I am going to cancel out this 2π with 4π। तो इसके साथ चलो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, this is 2, then 2 के साथ 10 कैंसिल हो गया, 2 5 10, then 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया। That means we are left with 10⁻⁻7 plus 2. So 10⁻⁻7 plus 2. So बच्चे इसमें मैंने वैल्यूज़ अज्यूम की है। CBSE will give you the values। CBSE आपको अगर देगा तो वैल्यूज़ भी देगा, हाँ डायरेक्शन भी इंडिविजुअल पूछ सकता है, बट बी रेडी फॉर द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्वेश्चन। सो दिस इज द आंसर, 10⁻⁻5, and then the unit of magnetic field, that is Tesla. So this is your final answer। and बच्चे फिर से एक बार डायरेक्शन प्लीज़ चेक करना, बिकॉज डायरेक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट वन पार्ट। मैग्नीट्यूड यू कैन ईजिली कैलकुलेट, मैग्नीट्यूड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो लेट मी चेक द डायरेक्शन। एक बार फिर से डायरेक्शन चेक करें। करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो दिस इज द
दिस इज़ द वेक्टर आइडियल एंड दिस इज़ द वेक्टर आर। तो वेक्टर आर ये है, दिस इज़ द आइडियल वेक्टर and this is r vector and what I have to do, point is above the conductor, okay, point is just above the conductor, so ideal cross r, अगर मैं ideal fingers रखूँगा ideal cross r, then yes this is the direction is right one, this direction is right one, ये जो direction आई थी हमारी, ठीक है, so this direction is right one, ये बिल्कुल सही है। So final answer will be magnitude, the point has at that particular point the magnitude of magnetic field is 10 to the power minus 5 Tesla and that magnetic field is towards north, that magnetic field will be towards north direction. So this is my first question answer. इसमें मैंने क्या किया है, I have taken the current as well as the distance of point I have taken manually, but I have also described कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है and the direction in this question is north. Now we are going to solve the second one. I will take the same value, मैं यहाँ पे भी 5 ही लूँगा ताकि so that magnetic field आपका थोड़ा easy रहे find out करना. Okay, let's see what is happening in this question. A current flows in a conductor from east to west. Okay, current is flowing from east to west, तो almost similar type of statement till now, east to west. The direction of magnetic field at a point below the conductor, तो इसमें क्या है below the conductor, so where is the point, देखो अब पहले क्या था, इस कंडक्टर के ऊपर था, above this conductor, now this point is lying this one, तो this is point that is lying below the conductor. तो अब बच्चे देखो यहाँ पे, now this is vector r. So these type of questions are very important from CBSE point of view as well as नीट एज वेल एज जेई, बहुत को पेपर हैं उनके कोई आपकी पर्टिकुलर लिमिट नहीं है पेपर किसी भी पेपर की. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पेपर्स, नीट है, जेई मेंस है, जेई एडवांस है, सो दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दैट पेपर्स आल्सो. सो दिस इज द वेक्टर आइडियल, this is the vector ideal and r vector is this one, so this is ideal vector. अच्छा, हम आइडियल क्रॉस आर यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन यूजिंग बॉयड-सावर्ट लॉ. हम क्या किससे यूज़ कर रहे हैं, बॉयड-सावर्ट लॉ, दैट स्टेट्स वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, किसी को अगर नहीं पता है वाई वी आर यूजिंग दिस वन. सो बॉयड-सावर्ट लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर वेक्टर क्यूब. So this is the formula for magnetic field using Boyd-Savarт law. Why we are using it, because here ideal cross r, so ideal vector cross r vector is giving me the direction of magnetic field. तो ideal वेक्टर को अगर हम क्रॉस कर देंगे r वेक्टर के साथ, where r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो पॉइंट है. सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस दिस वन, तो क्रॉस करेंगे. अब ध्यान से देखें बच्चे, इफ़ वी क्रॉस दिस आइडियल विद दिस वन, अब आइडियल की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो और आर वेक्टर की डायरेक्शन में क्लोज करो. कीप योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल वेक्टर एंड क्लोज इन द आर वेक्टर. तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में क्लोज करोगे, देन यू कैन ऑब्जर्व योर थंब विल बी टूवर्ड्स, आपका थंब किस तरफ आएगा बच्चे, चेक करो. योर थंब विल बी टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, योर थंब विल बी इन, हाँ इस पॉइंट पे योर थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, तो साउथ डायरेक्शन में आपका थंब आएगा. चेक प्लीज़, एक बार चेक करो. दिस इज़ आइडियल, सो आइडियल से क्रॉस करोगे, कीप योर फिंगर्स इन आइडियल डायरेक्शन, आइडियल डायरेक्शन में रखो एंड
क्लोज करो फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर. So when you will close your fingers in the from ideal vector to r vector, then your thumb will be towards south. So that means at this point which is below the conductor, जो below the conductor है, at this particular point which is just below the conductor, at this point the magnetic field has which direction? The magnetic field is towards the south direction. तो south direction में होगा magnetic field. I hope it is clear. And the magnitude, you can find the magnitude using that earlier formula, mu naught into I by 2 pi r. अगर आपको कहीं पे मैग्नीट्यूड गिवन होगा, करंट का कुछ भी गिवन होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज पॉइंट की डिस्टेंस गिवन होगी कि पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कंडक्टर, देन यू कैन इजीली फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि इफ़ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो दिस इज़ माई आइडियल वेक्टर. एक बार दोबारा चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं हुई. सो दिस इज़ माई आइडियल वेक्टर एंड दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर आर, जहाँ जो बिल्कुल कंडक्टर के नीचे पॉइंट है. कंडक्टर द पॉइंट इज लाइंग जस्ट बिलो द कंडक्टर, तो कंडक्टर के नीचे है. एंड व्हेन आई विल क्लोज माई फिंगर्स फ्रॉम आइडियल वेक्टर टूवर्ड्स आर वेक्टर, देन माई थंब विल बी टूवर्ड्स साउथ. बिल्कुल जी, साउथ की तरफ आपका आंसर आएगा. द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ डायरेक्शन टूवर्ड्स साउथ. तो साउथ फाइनल है हमारा, साउथ बिल्कुल सही आंसर है. द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ डायरेक्शन. तो साउथ डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा. एंड द मैग्नीट्यूड यू कैन फाइंड, अगर मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड आउट करना है तो हाँ आपको वैल्यू चाहिए करंट की. तो अगर सपोज वैल्यू ले लिया आपने करंट की 5 एंड दिस पॉइंट इज़ लाइंग 10 सेंटीमीटर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था. सो दिस पॉइंट इज़ लाइंग एट 10 सेंटीमीटर. द फार्मूला विल बी सेम, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा. सो दैट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, चलो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड विल बी 10 रेस्ट द पावर -5 टेस्ला फॉर दिस क्वेश्चन. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, वी आर टेकिंग द सेम वैल्यू. सो 10 रेस्ट द पावर -5 टेस्ला फॉर दिस क्वेश्चन एंड द डायरेक्शन इज टूवर्ड्स साउथ. सो यू कैन नोट डाउन, कहीं पे डाउट लगता है देन यू कैन आस्क इट अगेन. सो द डायरेक्शन इन दिस क्वेश्चन इज टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन. The direction of magnetic field in this question is towards the south direction. तो कहीं पे भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी अगेन. एक बार दोबारा आप आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो. बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक अ 3D डायग्राम. थोड़ा 3D डायग्राम लगेगा तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, बट इफ़ यू विल ट्राई एट योर ओन एंड, एक बार अपने एंड पे ट्राई करोगे देन इट विल बी मोर क्लियर. मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है जी, ईस्ट से वेस्ट है. सो मैग्नेटिक यू हैव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज़ 5 सेंटीमीटर अवे टूवर्ड्स नॉर्थ. तो 5 सेंटीमीटर नॉर्थ में चले गए जी हम. ठीक है, 5 सेंटीमीटर नॉर्थ एट अ पॉइंट विच इज़ 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा है. देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज 5 सेंटीमीटर इन नॉर्थ. तो हमने यहाँ पे जूम कर लिया. चलो, नाउ दिस पॉइंट इज लाइंग इन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना डायरेक्शंस का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. नाउ दिस पॉइंट इज लाइंग, हम इसको मान सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर नॉर्थ में है. सो वी कैन कंसिडर इट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंसिडर कर सकते हैं इस पॉइंट को. अर्लियर पॉइंट क्या था, पॉइंट ऊपर था या नीचे था. नाउ दिस पॉइंट इज लाइंग टूवर्ड्स द राइट. कंडक्टर के देखो, जिस कंडक्टर की अगर डायरेक्शन में हम देखें तो करंट की डायरेक्शन के बिल्कुल राइट साइड पे है ना. दिस पॉइंट इज लाइंग राइट साइड टू द कंडक्टर. तो एक बार देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज माई आइडियल वेक्टर. This is my ideal vector. This is my ideal vector and
this one is my r vector, this one is my r vector. So try to keep your fingers in the ideal direction, and if you will close your fingers in this direction, if you will close your fingers in this direction, ideal cross r, ideal cross r, ठीक है, आइडियल क्रॉस आर करके देखो. इफ यू विल क्लोज योर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, फर्स्ट कीप योर फिंगर्स अलोंग आइडियल डायरेक्शन में रखो, देन क्लोज योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर. अगर आप आर वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को क्लोज करोगे, देन यू कैन ऑब्जर्व योर थंब विल बी डाउनवर्ड. आपका जो थंब होगा दैट विल बी डाउनवर्ड. तो आपका थंब कहाँ पे आएगा? दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. So for this question, the direction of magnetic field will be vertically downward. इसके लिए आपका आंसर आएगा vertically downward. And now the point is lying at 5 centimeter. चलो करंट की वैल्यू ले लेते हैं 10 एम्पियर. लेट्स सॉल्व इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करें. सो करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. डायरेक्शन का बच्चे एक बार दोबारा चेक कर लें, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई. Let me check the direction again. So this is my vector. ये हमारा वेक्टर था ideal. So this was the vector ideal and I was crossing ideal cross r. तो ideal की डायरेक्शन, keep your fingers in the direction of ideal cross r करोगे. Yes, obviously my thumb will be downward. So this is the direction of magnetic field. So direction of magnetic field will be डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा. एंड नाउ आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. चलो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. सो मैग्नीट्यूड फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई ए. म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो म्यू नॉट इज इक्वल टू, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 7. सो 4 पाई इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 7. देन द वैल्यू ऑफ करंट इज 10 and okay, then we have to put the value of a. So 2 pi, the value of a is 5 centimeter. So 2 pi into 5, now we have to convert it into meters also. So 5 into 10 raised to the power minus 2. So this is my answer. ये मेरा आंसर आ जाएगा. थोड़ी सी कैलकुलेशन हम करते हैं. 2 pi into, चलो कलर चेंज, ओके. So 2 pi, 4 pi, this will cancel out. Here will be 2 and 5 into 10, it is again 2. So 2 into 2, 4. So my magnitude of magnetic field is 4 into 10 raised to the power minus 5. So you can check it, and the direction is vertically downward. So this type of question, मुझे exactly याद है, this type of question was asked in the examination. इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था and this was the question that was in 1 mark only. Vertically, direction is vertically downward. ठीक है, you can note down this question. vertically downward डायरेक्शन आएगी. हाँ, कहीं पे आपको लगता है कि कहीं पे मिस्टेक हुई है या कहीं पे गलती लगी है, देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज. आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो. मैग्नीट्यूड वी हैव कैलकुलेटेड. कहीं पे भी डाउट लगता है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सकता है कहीं पे डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करने में कहीं पे मे भी मिस्टेक हुई हो, लेकिन अपनी तरफ से आई हैव चेक्ड ट्वाइस, मैंने 2 बार चेक किया है. सो दिस इज आइडियल क्रॉस आर डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, एंड मैग्नीट्यूड इज 4 into 10 raised to power minus 5 vertically downward direction.
You can note down the solution part. So now we are going to solve the question number 4 now. Question number 4. In this question we have changed the direction of current. हमने direction of current change कर दी है थोड़ी सी. So शायद this you will definitely like this question because from last 2 to 3 questions जो हैं direction of current was same. So now the direction is different. Current is flowing from north to south. I am repeating, current is flowing from north to south. So north to south. In this direction I think current is flowing north to south. So this is the direction of current. The direction of magnetic field at a point above the conductor. तो एक point है that is just above the conductor. चलो ठीक है, ideal cross R करना है ना हमें. Okay, so now the point is lying above the conductor. चलो now let's take this is the point. This is the point which is just above this conductor. North से south जो conductor है उसके बिल्कुल ऊपर एक point है and this is the R vector. तो ये obviously R vector हो जाएगा because we have to find the magnetic field at this particular point. तो मैं point ले रहा हूँ this one. चलो ये point ले लेते हैं, थोड़ा color change. So this is the point. चलो this is the point where I have to find the magnetic field. So obviously this is R vector. Now and this is my ideal vector. देखो ideal vector कौन सा आएगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा. सो दिस इज माई आइडियल वेक्टर. So this is my ideal vector. Now I have to keep my fingers in the ideal vector direction of ideal vectors. तो मुझे अपनी फिंगर्स किस डायरेक्शन में रखनी होंगी, टूवर्ड्स आइडियल वेक्टर. दैट मीन्स मेरी पहले फिंगर्स किस तरफ होंगी, साउथ डायरेक्शन में. एंड आई हैव टू क्लोज माई फिंगर्स फ्रॉम साउथ डायरेक्शन टूवर्ड्स जो आर वेक्टर है. सो आई हैव टू क्लोज माई फिंगर्स इन दिस वे. लेट मी सो आई हैव टू क्लोज माई फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन. मुझे इस डायरेक्शन में फिंगर्स क्लोज करनी है. सो आई हैव टू क्लोज माई फिंगर्स इन दिस पर्टिकुलर आई डायरेक्शन, आर डायरेक्शन में लेकर जानी है. एंड आई हैव टू क्लोज माई फिंगर्स. तो देखो, अगर इफ़ यू विल कीप योर फिंगर्स इन साउथ डायरेक्शन एंड क्लोज टूवर्ड्स आर, देन योर थंब विल बी टूवर्ड्स वेस्ट. तो आपका थंब जो होगा दैट विल बी टूवर्ड्स वेस्ट. सो आई थिंक इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट विच इज़ लाइंग अबव द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. लेट मी चेक इट अगेन. एक बार दोबारा चेक करते हैं हम. सो साउथ, कीप यूर फिंगर्स अलॉन्ग इन द साउथ डायरेक्शन. साउथ डायरेक्शन से आर डायरेक्शन में क्लोज करेंगे एंड डेफिनेटली यूर थंब विल बी टूवर्ड्स वेस्ट. सो वेस्ट डायरेक्शन इज द राइट आंसर. एंड इफ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, यू विल यूज़ द सेम एक्सप्रेशन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर. तो आप वही एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई ए. दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर. तो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के लिए 2 पाई ए फार्मूला यूज़ होगा. आई होप क्लियर है आपको. एंड यू हैव टू आंसर दिस वन. आपने मुझे इसका आंसर करना है, ठीक है. यू हैव टू आंसर द आंसर दिस वन. इसका मैग्नीट्यूड हेयर इज 10 एम्पियर. 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग. चलो हम ही कर लेते हैं कैलकुलेट. एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर. तो 10 सेंटीमीटर ऊपर है. दिस पॉइंट इज एट 10 सेंटीमीटर अबव द कंडक्टर. तो जल्दी से कैलकुलेशन करके देख लें क्वेश्चन की. ओके, सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं. म्यू नॉट वैल्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेस्ट द पावर -7. So 4 pi into 10 raised to power -7 is the value of mu naught. Then we have the value of current that is equal to 10 ampere.
and then we have in the denominator we have 2 pi, and then we have the value of a. So value of a is 10 into 10 raised to the power minus 2, because we have to convert this centimeter into meters also. So we have to convert this centimeters into meters also. So finally after cancellation, दिस इज़ 2 पाई से 4 पाई, यहाँ पे पाई भी आएगा 4 पाई. सो 2 into 4 पाई हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड 10 and 10 विल ऑल्सो कैंसिल आउट. सो वी आर लेफ्ट विथ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 into 10 raised to the power minus 5, 2 into 10 raised to the power minus 5 टेस्ला. एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक बार चेक कर लें. दिस इज़ द आइडियल को आर के साथ क्रॉस करना है. सो इफ़ यू विल क्रॉस आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, देन योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स वेस्ट. सो टूवर्ड्स वेस्ट इज़ द राइट आंसर. सो डायरेक्शन इज टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन इजीली एक्सपेक्ट. मैंने कल भी आपकी क्लास में एक्सप्लेन किए थे, एंड दिस इज़ द वीडियो दैट आई हैव प्रिपेयर्ड. एक बार आप खुद भी ट्राई करें. सो वीडियो इसीलिए प्रिपेयर की गई है कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है, सो दैट यू कैन ईजिली सी. आपको मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसका मोटिव यही है कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करने में मैग्नेटिक फील्ड की, देन यू कैन आस्क मी अगेन. आप पहले एक बार हर क्वेश्चन को पॉज करें, पॉज द एवरी क्वेश्चन एंड चेक द डायरेक्शन. एक बार आप खुद पॉज करें हर क्वेश्चन को और पहले खुद डायरेक्शन चेक करें. आफ्टर दैट अगर आप डायरेक्शन चेक कर लेते हो, आफ्टर दैट यू कैन कम टू नो कि मेरी तरफ से डायरेक्शन कौन सी बताई गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्राई एट यूर एंड. एक बार आप खुद अपने एंड पे हर क्वेश्चन को ट्राई करें पॉज करके, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट वन क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. इस फिफ्थ क्वेश्चन है दिस वीडियो का, एंड आफ्टर दैट हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो करंट फ्लो कर रहा है नाउ वेस्ट टू ईस्ट. चलो ईस्ट से वेस्ट जा रहा था, अब उसका मन किया कि उसने वापस आना है, तो दैट करंट इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट इज फ्लोइंग. सो करंट इज फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. I hope it is clear. Current is flowing from west to east, and the direction of magnetic field at a point below the conductor. तो point कहाँ पे है? Point is lying below the conductor. तो below ले लेते हैं यहाँ पे. So this point is lying just below this conductor. तो ये east से west की तरफ जो conductor है उसके बिल्कुल नीचे है. So this is r vector and the point is this one. चलो ये point हो गया हमारा, है ना. चलो लेट मी मेक अ पॉइंट. ये मेरा पॉइंट हो गया. सो दिस इज़ द पॉइंट एंड दिस इज़ वेक्टर आर. ठीक है, दिस इज़ वेक्टर आर. एंड नाउ माई आइडियल वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? माई आइडियल वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो आइडियल वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो आई हैव टू कीप माई फिंगर्स टूवर्ड्स आइडियल वेक्टर. मुझे अपनी फिंगर्स राइट हैंड की किस डायरेक्शन में रखनी है? टूवर्ड्स द आइडियल वेक्टर. जो आइडियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में रखनी है. एंड आई हैव टू क्लोज माई फिंगर्स. मैंने क्रॉस करनी है, तो आइडियल वेक्टर से मैं किस वेक्टर की तरफ क्रॉस करूँगा? आई विल क्रॉस माई फिंगर्स टूवर्ड्स आर वेक्टर. तो आर वेक्टर की तरफ क्रॉस करूँगा. सो आई विल क्रॉस माई फिंगर्स टूवर्ड्स आर वेक्टर. सो इफ़ आई विल क्रॉस माई फिंगर्स फ्रॉम आइडियल डायरेक्शन, देखो मैं इस डायरेक्शन से यहाँ पे क्रॉस करूँगा. अगर मैं यहाँ से आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करूँगा ऑफ माई राइट हैंड विद माई राइट हैंड फिंगर्स, आई हैव टू कीप माई हैंड टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. मुझे अपना हैंड ईस्ट डायरेक्शन में रखना है. एंड आई हैव टू क्लोज माई फिंगर्स फ्रॉम आइडियल वेक्टर टू आर वेक्टर. आइडियल से आर वेक्टर की तरफ नीचे की तरफ मुझे अपनी फिंगर्स को क्रॉस करना है. मेरा थंब किस तरफ आएगा? माई थंब विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. सो
एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई होप यू कैन फाइंड इट ईजिली, आप फाइंड कर सकते हो। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इफ़ आई विल क्रॉस फ्रॉम आइडियल वेक्टर टू आर वेक्टर, अगर मैं आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ क्लोज करूँगा अपनी फिंगर्स, इफ़ आई विल क्लोज माई फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम आइडियल वेक्टर टू आर वेक्टर, मेरा थंब, माई थंब विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ, आइडियल क्रॉस आर, सो माई थंब विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एंड इफ़ आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, देन आई हैव टू अज्यूम, चलो मैं 2-3 वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ करंट इज 20 एम्पियर, 20 एम्पियर, एंड द okay, this point is lying at 5 सेंटीमीटर बिलो द कंडक्टर। चलो इसके लिए मैग्नीट्यूड आपको मैं, आई एम स्कीपिंग दिस मैग्नीट्यूड, ये आप मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करके बताओगे। सो करंट इज़ गिवन फॉर 20 एम्पियर, करंट आपके लिए 20 एम्पियर गिवन है। चलो मैं ही करता हूँ, 20 इंटू 4 पाई, वी आर यूजिंग द फार्मूला म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर, सो दिस इज़ 2 पाई, ये बोल सकते हो। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, सो दिस इज़ द न्यूमिनेटर पार्ट। नीचे की तरफ क्या आएगा? 2 पाई into a, the value of a is in this case 5 centimeter, so 5 into 10⁻⁻2, because we have to convert this centimeter into meters, so centimeter को मीटर में भी convert करना है। now we are, this 2 pi will cancel with 4 pi and it will be 2 in the numerator, ऊपर न्यूमिनेटर में 2 आ जाएगा। 5 will cancel with 20, 5 4s the 20, so my final answer will be 8 into 4 2s the 8, 8 into 10⁻⁻5 will be my answer, and this is the SI units of magnetic field is Tesla, and the direction is towards north. So direction of magnetic field is towards नॉर्थ डायरेक्शन। एक बार मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ कहीं पे कोई गलती ना हो, बिकॉज समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते टाइम गलती कर देते हैं। सो यू हैव टू ट्राई, आप एक बार अच्छे से ट्राई करना इन 5 क्वेश्चंस को, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार पॉज करके हर क्वेश्चन को अपने एंड पे दोबारा ट्राई करना। एक बार अगर आपने समझ भी लिए हैं, आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई, एक बार आप खुद भी, अगर आपने ट्राई भी कर लिए हैं, उसके बाद समझ भी लिए हैं, उसके बाद भी एक बार आप खुद ट्राई करना, देन इट विल बी मोर बेटर, आपको अच्छे से समझ आएंगे। सो आइडियल वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, एक बार लास्ट टाइम चेक कर लें, आइडियल वेक्टर इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। सो आइडियल वेक्टर इस डायरेक्शन में था, आइडियल क्रॉस आर, ठीक है, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल से क्रॉस करेंगे फिंगर्स एंड टूवर्ड्स आर वेक्टर। यस, योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो एक बार मैं दोबारा बना के बताता हूँ अगर आपको नहीं पता लगा। लेट्स सपोज दिस इज़ अ पॉइंट बिलो, ये पॉइंट है, ऑब्वियसली दिस विल बी द वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? दिस इज वेक्टर आर, एंड दिस इज माई आइडियल वेक्टर। तो आइडियल वेक्टर किस डायरेक्शन में था? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट फ्लो कर रहा था, तो दिस इज माई आइडियल वेक्टर। तो अगर मैंने आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करना है, इफ़ आई हैव टू डू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, देन ऑब्वियसली माई मैग्नेटिक फील्ड विल बी, किस डायरेक्शन में आएगा बच्चे मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सो टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी डायरेक्शन, कहीं पे भी आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि डायरेक्शन में प्रॉब्लम आई है, देन यू कैन आस्क मी अगेन। एक बार आप दोबारा कमेंट बॉक्स में कहीं पे भी क्वेश्चन नंबर लिख के, क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम लिख के, कि आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन में कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, देन यू कैन आस्क इट अगेन। बाकी मेरी तरफ से आई थिंक डायरेक्शन के क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हैं, फिर भी कहीं पे हो सकता है देयर कैन बी ए चांस ऑफ एरर, बिकॉज हमसे भी कई बार कोई गलती
हो सकती है, बट आई होप के डायरेक्शंस विल बी राइट, सारी डायरेक्शंस राइट होंगी। यू कैन चेक एट योर ओन एंड, आप एक बार अपने एंड पे चेक करें, हर क्वेश्चन को पॉज करें। फर्स्टली यू कैन पॉज द वीडियो बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन, आप सोल्यूशन देखने से पहले एक बार पॉज करें वीडियो को। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप एक बार खुद फाइंड आउट करें, एंड देन यू कैन सी द सोल्यूशन पार्ट। एंड आई होप यू विल डेफिनेटली सॉल्व 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस करेक्टली। आप 4 आउट ऑफ 5 इजीली करेक्ट करोगे, बिकॉज येस्टरडे मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। बट इफ़ यू हैव स्टिल सम डाउट देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज। योर doubts are most welcome. Thank you so much students. If you feel that this video is useful to you, then you can share and like this video with your friends. Have a nice day ahead. Take care. Bye bye.